identical EMF and same internal resistance whether joined in series or in parallel, whether joined in series or in parallel, give the same current to an external resistance R. Give the same current to an external resistance R. Calculate. Calculate the value of internal resistance. Calculate the value of internal resistance. अब देख दो सेल लिए E comma small r, E comma small r. Join to acceleration capital R. ठीक है. Second, E comma small r, E comma small r. Join in parallel to acceleration of capital R. चेक करो. ठीक है जी. Acceleration capital R. यहाँ पे नेट ईएमएफ कितनी आ गई बेटे? 2E टोटल रेजिस्टेंस 2R plus R. सेल्स के इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल दे आर ऑलवेज जॉइंड इन पैरेलल. यहाँ पे नेट ईएमएफ कितनी आ गई? E टोटल रेजिस्टेंस. ये R और R पैरेलल में क्या हो जाएगा? R/2 प्लस R. चेक कर. ये R/2 हो जाएगा, ये कैपिटल R, तो R/2 प्लस R. क्लियर है? I 2E 2R plus R. I E R/2 plus R. E R plus 2R/2. 2 पर चला गया. क्या हुआ? एक्सक्यूज मी सर. हाँ मेरे बच्चे. सर क्वेश्चन नंबर रिपीट कर दो एक बार. कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन था टू आइडेंटिकल सेल्स. सर आपने लिखवाया था वही है, मेरे को लगा असाइनमेंट में से कोई. हाँ नहीं मैंने लिखाया था. हाँ सॉरी सर. टू आइडेंटिकल सेल्स whether joined in series or in parallel give the same current ठीक है जी.
अब दोनों आई और आई को इक्वेट कर दें। ठीक है, इट इज 2e 2r प्लस r 2e r प्लस 2r, ये दोनों कटे r प्लस 2r इसको इधर ले, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन से स्टार्ट किया बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखो, a cell of EMF 1.1 volt, a cell of EMF 1.1 volt and internal resistance 0.5 ohm, a cell of EMF 1.1 volt I repeat, a cell of EMF 1.1, internal resistance 0.5 ohm, connected to a wire of resistance 0.5 ohm, connected to a resistance of 0.5 ohm, full stop. Another cell of same EMF, another cell of same EMF another cell of same EMF connected in series, connected in series, but the current in a wire remain the same, but the current in a wire remain the same. Find the internal resistance, find the internal resistance of the second cell, find the internal resistance of the second cell. अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, पहले एक सेल है 1.1 वोल्ट का, वन पॉइंट वन वोल्ट का, बाहर के रेजिस्टेंस 0.5 ओम और स्मॉल आर वो भी 0.5 ओम। तो आई का फॉर्मूला कितना है, E अपॉन आर प्लस आर, इट इज 1.1 अपॉन 0.5 प्लस 0.5,
It is 1.1 by 1. So I comes to be 1.1 ampere. I comes to 1.1 ampere. ठीक है। सेकंड केस हमने क्या किया, इसके साथ एक और आइडेंटिकल सेल लगा दिया 1.1 वोल्ट 1.1 वोल्ट, इसकी रेजिस्टेंस 0.5 ओम, इसकी रेजिस्टेंस नहीं पता, ये 0.5 ओम। करंट सेम आई ई प्लस ई अपॉन स्मॉल r1 प्लस r2 प्लस r, इट इज 1.1 प्लस 1.1 0.5 प्लस r प्लस 0.5। तो आई कितना है 1.1, इट इज 2.2 डिवाइड बाय 1 प्लस स्मॉल r। स्मॉल r के लिए सॉल्व कर लोगे पूरी इक्वेशन। चेक करो, फटाफट निकालो स्मॉल r क्या है 1.1 प्लस 1.1 r 2.2, स्मॉल r कितना आ गया 1 ओम। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यस सर। ओके, एक मिनट। a cell of EMF E, a cell of EMF E and internal resistance small r सर and एक मिनट, internal resistance small r, एक्सक्यूज मी सर। a cell of EMF E and internal resistance small r sends current I1 and I2, sends current I1 and I2 when joined to an external resistance of R1 and R2, when joined to an external resistance of R1 and R2, tell E प्लीज रिपीट द comma क्वेश्चन। R capital R1, current I1 सर प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। कर रहा हूं बेटे, I2, a cell of EMF E internal small r sends current I1 and I2 when joined to external resistance capital R1 and capital R2। यहाँ पे कैपिटल R1 है, यहाँ पे कैपिटल R2, यहाँ पे करंट I1 है, यहाँ पे करंट I2 है। तो I1 का फॉर्मूला क्या हुआ E अपॉन R1 का साथ, I2 का फॉर्मूला क्या हुआ E अपॉन R2 प्लस R। फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस एंड EMF। अब देख E का फॉर्मूला क्या बना I1 R1 प्लस R, इधर E का फॉर्मूला क्या बना I2 R2 प्लस R। ठीक है, दोनों को इक्वेट कर दूं
1 and 2. It is I1 R1 plus I1 into small r. I2 R2, I2 into small r. इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ. तो क्या बना? I1 R1 minus I2 R2, I2 minus I1 into R implies R I1 R1 minus I2 R2, I2 minus I2. पहला क्लियर. स्मॉल आर. अब ये स्मॉल आर यहां डाल लो या यहां डालो, ई के लिए सॉल्व करो. वी नीड टू सॉल्व फॉर ई. अब देख, ई का फॉर्मूला क्या है? I1 R1 प्लस R, I1 R1 प्लस स्मॉल r, I1 R1 minus I2 R2, I2 minus I1. ठीक है. It is I1, I2 minus I1. It is R1, I2 minus I1 plus I1 R1 minus I2 R2. I1 R1 I2 plus I1 R1 I2 minus I1. ये दोनों कटे. मेरे पास क्या है? I1 I2 कॉमन, R1 minus R2 अपॉन I2 minus I1. तो ई क्या बना? I1 I2 R1 minus R2 I1 I2 R1 minus I2 upon I2 minus I1. EMF आ गई. मैं कितना देर Correct. Next question. Yes, sir.
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सेल्स of same EMF E. I repeat, two cells of same EMF E are joined in series, having same EMF E are joined in series, having internal resistance, having internal resistance internal resistance small r1 and small r2 joined to an external resistance of capital R, joined to an external resistance of capital R. The potential drop across the first cell, the potential drop across the first cell is zero. The potential drop across the first cell is zero. Calculate the relationship between external resistance and internal resistance. अब देख, दो सेल हैं, दोनों की ईएमएफ सेम है, तो पहले अपने एक्सटर्नल और उसके बाद इंटरनल बोल रहा था ना। relationship between external resistance and internal resistance, so that the potential drop across first cell is zero. Potential drop across first cell is zero. अब देख, टोटल ईएमएफ कितनी आ गई, 2E. टोटल रेजिस्टेंस R1 plus R2 plus R. टोटल रेजिस्टेंस R1 plus R2 plus R. तो I का फॉर्मूला क्या हुआ, टू ई R1 plus R2 plus R. वोल्टेज ऐड हुई, वो कहता है इसके क्रॉस जो टर्मिनल वोल्टेज है वो जीरो है, तो V का फॉर्मूला क्या बना, E माइनस आई इंटू R1. ठीक है ना, V क्या बोल रहा है, जीरो. E आई की वैल्यू डाल दो बेटा, 2E R1 प्लस R2 प्लस R इंटू R1. इस तरह किधर लिया, क्या बना, 2E R1 प्लस R2 प्लस R इंटू R1 इजी, ई और ई कटे, 2R1
R1 प्लस R2 प्लस R, उठा के लेके जाओ, 2R1 माइनस R1, R1 माइनस R2 इज कैपिटल R, चेक R1 माइनस R2 इज कैपिटल R. ठीक है जी, स्मॉल आर का फॉर्मूला क्या है? R1 माइनस R2. अरे थोड़ा सा तुम्हें बेसिक सा क्लियर हो गया, अब न्यूमेरिकल्स पे आ जाओ, कंप्लीट वाली असाइनमेंट खोलो. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38. जब हमने सीरीज में पढ़ा था तो क्या पढ़ा था? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे चलते हैं, और पैरेलल में सारे पॉजिटिव एक तरफ सारे नेगेटिव एक तरफ. तो 38 में क्या करें? 6 1 2 3 4 5 6. ठीक है, 6 cells of 2 volt each and internal resistance 0.015 ohm are joined in series. तो बाहर वाली कितनी है? 8.5 ohm. सिंपल सा क्वेश्चन आई निकालना है. नेट ईएमएफ कितनी आ जाएगी? इट इज 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2. इट इज 12 वोल्ट. ठीक है, इट इज 0.015 इंटू 6. चेक कर, ये सारे रेजिस्टेंस और ये दे आर ऑलवेज जॉइंड इन सीरीज 8.5. तो 0.015 इंटू 6 कितना हुआ? 0.09. प्लस 8.5, आंसर कितना आ गया? 8.59 ओम. तो करंट 12. चेक कर, क्वेश्चन क्लियर. सबसे आसान क्वेश्चन स्टार्ट किया फिर से. इसी में सर नेक्स्ट क्वेश्चन करें. इसी में लिख, इसी के साथ 38 में, इफ, आई रिपीट, इफ वन सेल is joined, if one cell is joined wrong, if one cell is joined wrong, what is the current now? अब एक सेल गलत जोड़ दिया
ठीक है, हम रिमोट में अगर गलत सेल डाल दे रिमोट चलता है नहीं ना, इफ वन सेल इज जॉइंट रॉन्ग। अब मेरी वोल्टेज क्या हो जाएगी देख, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 -2, कितना हो गया 1 2 3 4 5, आंसर इज 8 वोल्ट। तो इसमें क्या बनेगा, इफ वन सेल इज जॉइंट wrong, it will give a loss of 2 cells. It will give a loss of 2 cells. अगर एक सेल गलत जुड़ गया नुकसान 2 का होगा। नुकसान 2 का होगा। जैसे तुमको कैसे तेरे इतनी दूर आना पड़ेगा तो तुम मतलब 4 में होता है, तू कह रहा था मतलब गूगल में तो कैसा करते जैसे के पास ठीक है। अब 8 वोल्ट रेजिस्टेंस सारी ऐड होगी, रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं रहेगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 6 डिवाइड सॉरी 8 डिवाइड बाय 8.59 एम्पियर। क्लियर हुआ कंसेप्ट। अगर एक सेल गलत जोड़ा है तो लॉस कितना का होगा 2 का होगा, याद रखना। ठीक है, Yes, यस sir.